اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں، مادر شیخ کی دعا پانے چلے آتے ہیں، فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، فرش مجلس پہ عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ، شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، کربلا والوں کے آوازیں بولو، نعرے سلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے، خون سستا ہے جہاں پانی پر مہنگائی ہے، ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے، ایسے ماحول میں اصغر کو ہنسی آئی ہے، جب عزاداری سے طاقت کوئی ٹکرائی ہے، جب عزاداری سے طاقت کوئی ٹکرائی ہے، اپنے ناکام ارادوں کی سزا پائی ہے، خون سستا ہے جہاں پانی پہ مہنگائی ہے، سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خوان علی، سننے والے ہیں فرشتے میں ثنا خوان علی، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے، کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے، عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں، عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں، کس قدر پرچم عباس کی اونچائی ہے، خون سستا ہے جہاں محمد وآل محمد۔ جناب حسن عباس دھام پوری صاحب آپ کے سامنے پیشخوانی کرنے جا کعبہ اداس مسجد کوفہ اداس ہے، غم علی کے عرش مولا اداس ہے، ظالم بڑا ہے تیغے زہر میں بجھی ہوئی، سجدے میں مرتضیٰ کے زمانہ اداس ہے، کعبہ اداس مسجد
دے جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے، علی کے ذکر کے آگے یہ رات چھوٹی ہے، اور علی کو کیسے نہ مولا کائنات کہوں، جزاک اللہ۔ علی کا ذکر بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا ذکر مجھ سے بلا دوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران حسین، یہ پوری کائنات میں علی کے سوگوار، عزیزو، یہ مساک کی رات ہے، یہ شب عاشور سے کم نہیں ہے عزیزو۔ وہ سکینہ کی یتیمی کی رات تھی، یہ زینب کی یتیمی کی رات تھی۔ اور دونوں پھوپھی اور بھتیجیوں کا عجیب نصیب ہے، اسے بھی یہ رات پردیس میں نصیب ہوئی تھی، اسے بھی یہ رات پردیس میں نصیب ہو رہی ہے۔ آج ہم اس امام کو رونے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ امام جس نے پوری زندگی میں جو کی سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، اللہ اکبر۔ رونے کے لیے ایک جملہ آپ سے بیان کرتا چلوں عزیزوں، جب خیبر فتح ہوئی تھی تو پورا مدینہ غنی ہو گیا تھا، لوگ اونٹوں پہ بھر بھر کر زر و زیورات لے کر جا رہے تھے۔
फिजा दर खैमा पर खड़ी देख रही थी इस मंजर को। एक मर्तबा अली को आते हुए देखा। फिजा ने कहा, या अली, मैं काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि पूरा मदीना गनी हो गया है। आपके ज़रो ज़ेवरात तो ऊँटों की कतारों में आ रहे होंगे। अली ने कहा, फिजा तू कहना क्या चाहती है? कहा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि हसनैन 3 दिन से फाके में। बाद रसूल अली पर मुसीबत की इंतहा हो गई। अजीजों, एक दिन शहजादी ने पूछ दिया, या अली, मैंने कंबर से, मैंने सलमान से, मैंने उम्मे ऐमन से, मैंने फिजा से सुना है कि मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। फस्साहा अली, अली ताड़े मार कर रोने लगे। जब अली रोने लगे तो बतूल ने समझा शायद हमारे कहने से अली का दिल दुख गया। करीब आकर बैठ गई, या अली, अगर मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते तो न करें। आपको तो अल्लाह सलाम करता है, आपको अंबिया सलाम करते हैं, आपको फरिश्ते सलाम करते हैं, आपको हसनैन सलाम करते हैं, आपको फिजा सलाम करती हैं, आपको हम सलाम करते हैं। एक मर्तबा अली ने रो कर कहा, ए बतूल, मैं इसलिए नहीं रो रहा है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैं सलाम करता हूँ तो कोई मेरा जवाब नहीं देता। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी भी गम में न रुलाए सवाए गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ात मोहतरम, रोते जाइए, गिरिया करते जाइए और मातम करते जाइए और दुआएं मांगते जाइए। मग़फ़िरत की रात है अज़ीज़ान मोहतरम, आज ये आखिरी रात है मेरे मौला की। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा मौला मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहा था। एक औरत मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मेरे मौला ने अपने बेटे हसन से कहा, हसन जाओ और उस औरत से कह दो कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मर्दों के मजमे में कोई औरत आ जाए। इमाम हसन गए, उसने कुछ पैगाम दिया, वापस आकर बाबा से कहा। अली ने पूछा, क्या कह रही है? कहा, वो मज़्ज़मा कह रही है कि मेरे दर्स का कोई इंतजाम किया जाए। मौलाए कायनात ने कहा, मेरे लाल जाकर उससे कह दो कि 1 हफ्ते के बाद उसके दर्स का इंतजाम हो जाएगा, उसके लिए मैं मुअल्लिमा का इंतजाम कर दूंगा। अजीज़ा ने मोहतरम, औरत चली गई। अली ने रोना शुरू किया। बच्चों ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? अली खामोश। मिंबर से उतरे, अली रोते रहे। बच्चों ने पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? अली खामोश। रास्ते भर बच्चे पूछते रहे, बाबा क्यों रो रहे हैं? अली खामोश। जैसे घर के अंदर दाखिल हुए, दोनों बच्चे कदमों के नीचे गिर गए। गिर कर कहते, मौला ये बाबा ये रोने का सबब क्या है? कहा, मत पूछो, बात तेरी बहन ज़ैनब की थी, मैंने मर्दों के दरमियान नहीं समझा। अरे जा मदीने चला जा और ज़ैनब को साथ लेकर आओ। दोनों बच्चे मदीने पहुंचे। जनाब ज़ैनब के महल के बाहर पहुंचे, दरवाजे को दक्कुल बाब किया। बच्चे अंदर दाखिल हुए। हसन और हुसैन ज़ैनब के घर पहुंचे हैं। बहन ने जल्दी से दस्तरखान बिछाया। दोनों भाई खाने पर बैठ गए। ज़ैनब भी बैठ गई। एक मर्तबा हसन ने कोहनियों देकर हुसैन से कहा, भैया तुम कहो। हुसैन ने कहा, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने तड़प कर कहा, तुम आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हो? हसन ने कहा, ज़ैनब बाबा ने तुझे कूफे बुलाया है। जैसे कूफे का नाम सुना, ज़ैनब उठकर खड़ी हो गई, रोने लगी। हसन ने जाकर कलेजे से लगा कर कहा, ज़ैनब अरे घबराने की बात नहीं है, बाबा की शाही है, पर्दे का एहतमाम होगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, मैं रो इसलिए रही हूँ, अम्मा ने कहा था जब कूफे से बुलावा आए तो समझना उजड़ने के दिन करीब हो। जज़ाकुमुल्लाह
ज़ौतराकुम रब्बकुम खुदा को किसी भी काम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। रोइए रोइए दिल खोल कर रोइए रोइए। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ फर्श अज़ा पर अली के बच्चे भी जरूर आकर बैठे होंगे अपने बाबा का पुरसा लेने के लिए। बेटियां भी आई होंगी, शहजादी फातिमा भी आई होंगी और रसूलुल्लाह भी आए होंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम दिल खोल कर पुरसा दे लीजिए। अल मुख्तसर ज़ैनब की सवारी तैयार हुई। जिंदगी में पहली बार अली की बेटी घर से बाहर निकली है। बड़े अदब व एहतराम के साथ ज़ैनब के पर्दे का ख्याल अब्बास के हवाले था। अब्बास ने पर्दे में किया, ज़ैनब को लेकर चले। जैसे कूफे के करीब पहुंचे एक मर्तबा अली खुद आ गए। हसन तुम हट जाओ, हुसैन तुम हट जाओ, अब्बास तुम हट जाओ, अब्दुल्ला तुम हट जाओ। एक मर्तबा अब्बास ने जाकर कहा बाबा फिर बहन ज़ैनब के साथ कौन रहेगा? कहा ये तेरा बाबा खुद रहेगा। अब अली लेकर चले। मैं कहूँगा या अली आपका आज अजीब नसीब है, आज आप अपनी बेटी को लेकर जा रहे हो। आपका भी नाम अली है। एक करबला का अली भी जब कूफे के बाजार के करीब आएगा, हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, पैरों में बेड़ियाँ होंगी, गले में खारदार तो कुपी के ऊँटों की मिहार होगी। अब काफिला कूफे के बाहर पहुंचा। एक मर्तबा अली ने महमिल का पर्दा हटाया, इशारा देकर कहा ज़ैनब मेरी बात सुन मेरे लाल। का बाबा फरमाई का देख ये कूफे का मरकजी दरवाजा है। ज़ैनब खामोश। काफिला और आगे बढ़ा। ज़ैनब ये देख कूफे का बाजार है। ज़ैनब खामोश। का देख ये कूफे का चौक है। ज़ैनब खामोश। का देख ये कूफे का दरबार है। एक मर्तबा ज़ैनब ने तड़प कर कहा बाबा ये बाजार ये दरबार ये बाजार ये दरबार मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब ने जनाब मौला कायनात ने तड़प कर कहा मेरे लाल हो सकता है कभी उजड़ कर इस बाजार में आना हो, इस दरबार में आना हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने तड़प कर कहा बाबा मैं और दरबार कहा मेरे लाल घबराती क्यों है? अम्मा भी तो दरबार गई थी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बाबा अरे अम्मा की मजबूरी थी, अम्मा के कोई भाई नहीं था, मेरा अब्बास जैसा भाई है। अली ने तड़प कर कहा ज़ैनब अरे जब उजड़ के आओगी तो तेरे भाई का सर घोड़े की गर्दन पर लटा होगा, हुसैन का सर नोके से ज़ौतराकुम रब्बकुम 17 रमजान आई अजीजो। मेरा मौला मिंबर पर बैठ कर खुतबा दे रहा था। इसी असना में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जैसे मेरे मौला ने उसे देखा रोना शुरू किया। जैसे मेरे मौला ने रोना शुरू किया दाएं से सासा बिन सुहान उठे, बाएं से मालिक अश्तर उठे। एक मर्तबा मालिक अश्तर ने हाथों को जोड़कर कहा मौला मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप इसे बाजार में देखते हैं तो रोते हैं, दरबार में देखते हैं तो रोते हैं, मस्जिद में देखते हैं तो रोते हैं, ये रोने का सबब क्या है? एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अश्तर मत पूछो, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरी मौत चाहता हूँ। मालिक अश्तर ने कहा मौला आप और मौत से डर कर रो रहे हैं? मैंने तो कई मर्तबा आपको मौत से लड़ते हुए देखा है। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा मालिक मैं मौत से डर कर नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बेटियां परदेश में हैं, ईद के दिन करीब आने वाले हैं, मेरी बेटियां परदेश में यतीम हो जाएंगी। खुदा उनको किसी भी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम 18 रमजान को एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फिजा को बुलाकर कहा फिजा कूफे के घरों में चली जाओ और उनसे जाकर कह दो कि तुम्हें मगरिब के नमाज के बाद अली ने अपने घर में बुलाया है। नमाज मगरिब के बाद 18 रमजान को सारी बीबियां अली के घर में आ गईं। अज़ीज़ान मोहतरम एक मर्तबा जब सारी कूफे की औरतें अली के घर में आ गईं, एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फिजा से बुलाकर कहा फिजा इनसे कह दो जाकर ज़ैनब के हुजरे में बैठ जाए। जुमला सुन लेना इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनसे कह दो कि जाकर ज़ैनब के हुजरे में बैठ जाए। सारी बीबियां जाकर ज़ैनब के हुजरे में
बैठ गई। एक मरतबा फिजा को बुला कर कहा, फिजा जा घर का सारा चिराग ज़ैनब के हुजरे में रोशन कर दे। फिजा ने सारा चिराग उठा के ज़ैनब के हुजरे में रोशन कर दिया। अली ज़ैनब के हुजरे में दाखिल हो गए। नक्शा सुन लीजिए साने मोहतरम, ज़ैनब का हुजरा है, कूफे की औरतें बैठी हुई हैं, अली हुजरे में दाखिल हुए, सारा चिराग रोशन है। एक मरतबा अली ने ज़ैनब को उठाकर एक ऊंचे मकाम पर बिठाया। बिठाने के बाद ज़ैनब के सर से चादर उतार दी। उतारने के बाद कूफे की औरतों की तरफ मुखातिब होकर कहा, कूफे की औरतों, मेरे घर का सारा चिराग रोशन है, मेरी ज़ैनब सामने बैठे हैं, इसे देख के अच्छी तरह से पहचान लो। शायद उजड़ कर तुम्हारे शहर में आए तो इसे बाकी की बहन न कहना, इसे पत्थर न मानना, इसे चादर दे देना। जज़ाकुम रब्बकुम। आज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद निस्फ रात गुजरी है। मेरा मौला 18 रमजान को बड़ी बेचैनियों से गुजार रहा था। कभी हुसैन के हुजरे में जा रहे थे, कभी अब्बास के हुजरे में जा रहे हैं, कभी हसन के हुजरे में जा रहे हैं, कभी ज़ैनब के, कभी उम्मे कुलसूम के। ये मंजर शहजादी ज़ैनब ने देख लिया। जुमला सुन लीजिए, कलेजे में ताकत हो तो बर्दाश्त कर लेना जाने मोहतरम। हाँ जाने मोहतरम, ये मंजर जनाब ज़ैनब ने देख लिया, बाबा के पीछे पीछे चलने लगी। एक मरतबा मेरे मौला ने बढ़कर इमाम हसन के होठों का बोसा लिया। ज़ैनब खामोश रही। अब्बास के करीब गए, अब्बास के बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब खामोश रही। ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब खामोश रही। कुलसूम के बाजुओं का बोसा लिया। ज़ैनब खामोश रही। एक मर्तबा हुसैन के हुजरे में गए हैं और गुलूबंद को खोलकर जैसे गले का बोसा लिया। अब ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, कहा, बाबा आपने भैया हसन के होठों को चूमा, ये मेरे भाई के गले को क्यों चूम रहे हो? अरे ज़ैनब, मेरे लाल, करबला का मैदान होगा, तेरे भाई का गला होगा, शिमर का खंजर होगा, 3 दिन का भूखा और प्यासा। जज़ाकुम रब। बस आखिरी 2 जुमले शहादत के और खत्म दुआ ज़हन मोहतरम। मेरा मौला चला, मुसल्ले पर गया, जैसे नमाज पढ़ाने के लिए सजदे में मेरे मौला ने सर को रखा है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर आलूदा तलवार एक मर्तबा अली के सर पर लगाई, आवाज दी, फुस्तु रब फिर रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अज़ीज़ाने मोहतरम, आवाज दी, मेरे लाल हसन आकर नमाज को मुकम्मल कराओ। हसन ने नमाज को मुकम्मल कराया। लोगों ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया। वो कुछ इशारा कर रहा था। मौला ने कहा, वो क्या मांग रहा है? कहा, मौला वो पानी मांग रहा है। कहा, उसे शरबत पेश किया जाए। मैं कहूँगा, मौला अपने कातिल को शरबत पिला रहे हो, लेकिन आए तेरा लाल करबला के मैदान में 6 महीने के बच्चे के लिए इस तरह से पानी मांग रहा था। ए फौजे अशकिया, मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा और प्यासा। अब मेरे मौला को लेकर उनके बेटे चले। पीछे पीछे चाहने वालों का हुजूम था। अजीज़ाने मोहतरम, जैसे घर के करीब पहुंचे हैं, एक मर्तबा मेरे मौला ने रोक दिया। रोकने के बाद कहा, हसन मेरे लाल, इनसे कह दो कि अब यहाँ से वापस चले जाएं। एक मर्तबा हसन ने कहा, बाबा इन्हें वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा, इसलिए कि मेरे हालात को देखकर कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटियां घर से बाहर निकल आए। मैं कहूँगा, मौला अरे जिस ज़ैनब के पर्दे का इतना ख्याल, वही ज़ैनब वाक़ियाते करबला के बाद दोनों हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे और आवाज दे रही होगी, मैं अली की बेटी हूँ। बस आखिरी जुमला जाने मोहतरम, खत्म दुआ। जर्रा बुलाया गया। जर्रा ने बताया, मेरा मौला हसन, अब तेरे बाबा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। मेरे मौला ने वसीयतें करना शुरू किया।
عزیزان محترم ایک جملہ سن لیجیے. سارے بچوں کو بلایا, سب سے پہلے حسین کو بلایا, حسن کے حوالے کیا, زینب کو بلایا, حسن کے حوالے کیا, کلثوم کو بلایا, حسن کو حوالے کیا. لیکن ایک ننھا شہزادہ تھا جو گھر کے کونے میں بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا. ارے میرا اللہ کو سلام. عباس کی ماں ام البنین پر ایک مرتبہ ام البنین آگے بڑھی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے, اے میرے والی و وارث, کیا میرے لال سے کسی کوئی خطا ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے لال کو کسی کے حوالے نہ کیا. عزیزان محترم, امام مولا کائنات نے عباس کو بلایا, کلیجے سے لگایا, عباس کا ہاتھ لیا, حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا, اے میرے لال, جب تک زندہ رہنا حسین کا ساتھ دیتے رہنا. اپنے اس وعدے کو عباس نے پورا کیا. عزیزان محترم, جب تک عباس زندہ رہے حسین کی سپہ سالاری کرتے رہے. ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی, آقا میرا آخری سلام. عباس کے قریب پہنچے, کہا ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دو. کہا جب تک اماں نہیں کہے گی. کہا اگر میں اجازت دلوا دوں. کہا آپ اجازت دلوا دیجئے تو میں اماں کہوں, بھیا کہوں گا. ام البنین کی طرف اشارہ کیا, کہا اماں کو دیکھو اپنی دونوں انگلیوں میں. اماں نظر آئی, آواز دی, آقا اے اماں. آقا کہہ رہے ہیں مجھے بھیا کہہ دو. ام البنین کی آواز آئی, عباس بھیا کہنا, اس کے بعد زندہ نہ رہنا. عباس نے بھیا کہا, روح پرواز کر گئی, اپنا وعدہ پورا کیا, زندگی بھر حسین کا ساتھ. اللہم لن قتلت الامیر المومنین السلام. بار الہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا, اور ان یتیموں کا جو آج کی رات میں یتیم ہوئے ان کا واسطہ ہے. اس وبا سے, اس مصیبت سے ہمشیہ نے حیدر و کرار کو محفوظ رکھنا. جو بیمار ہیں, جو مبتلا ہو چکے ہیں اس مرض میں, انہیں شفا ضرور دینا. اور تمام عزادار جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا علی کے چاہنے والے ہیں, اس مرض سے محفوظ رکھنا, اس پریشانی سے نکال دینا. پروردگار عالم, ہم پردیسیوں کے لیے آپ حضرات خصوصاً دعا کریں کہ ہم پردیس میں جتنے بھی پردیسی جہاں کہیں بھی ہوں, بار الہ تجھے واسطہ ہے بحق محمد وآل محمد کا, تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کا, ان کے صدقے میں ہم سارے پردیسی پردیس میں محفوظ رہیں, اس بلا سے محفوظ رہیں, اس مصیبت سے محفوظ رہیں, اس مرض سے محفوظ رہیں. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بحق محمد وآل محمد کا, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو مریض انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے بحق محمد وآل محمد کا, مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ماتم حسین.